اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے ہی نہیں بلکہ سرزمین ہند سے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا. مشینری لگ گئی, پوری حکومت لگ گئی, فل پاور انہیں دیا گیا, سب کچھ ہوا اور ایک سوئی کے ناکے پہ لا کے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا گیا. یہ 1852 کا واقعہ. 1852 انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا مذہب بھی ناکارہ اور تم بھی ناکارہ, اور اگر تمہارے میں ہمت ہے, تم کارآمد ہو, تو مناظرے میں جیت کر کے دکھا دو. اگر تم نہ جیتے, تم ہار گئے, تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ پورا ہندوستان عیسائی ہو جائے گا, نصرانیت قبول کر لے گا. تمہیں اس پوائنٹ پر آنا پڑے گا. اس کے لیے اس وقت کے جو بڑے بڑے حکمراں تھے انگریزوں کے, اس وقت میں آگرے کو اکبر آباد کہا جاتا تھا. یہی آگرہ جہاں آپ تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں, اپنا وقت اور مال برباد کرنے کے لیے, یہ وہی آگرہ ہے. یہاں مناظرے کی مجلس لگی, اسٹیج سجا, اور غیر منقسم ہندوستان. کتنا بڑا ہندوستان اس وقت کا رہا ہوگا, جب پڑوسی ملک بھی اس میں تھا, بنگلہ دیش بھی اس میں تھا, نیپال, بھوٹان, یہ آج پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ٹکڑے, یہ پورا مشترکہ غیر منقسم ہندوستان. ان کی نظریں اس بات پر لگی تھی کہ آج حکومت نے پوری طاقت جھونک دی ہے. عیسائی چیخ چیخ کے, گلے پھاڑ پھاڑ کے, چلا چلا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی ناکارہ, تمہارا مذہب بھی ناکارہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تمہیں اس میدان مناظرے میں آ کے اپنی فتح دکھانی ہے, نہیں دکھا سکتے تو اس کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ پورا ہندوستان عیسائی ہو جائے گا. انگریزوں کو اتنا زعم ہو گیا تھا, گھمنڈ ہو گیا تھا, انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ دن ہے کہ اس کے بعد نہ اسلام دکھے گا ہندوستان پر اور نہ مسلمان دکھے گا. ان کے مدبران, بڑے بڑے مدبران ملک, ان کا وزیر اعظم, ان کا صدر جمہوریہ, اور ان کا چپراسی سے لے کے اوپر تک, جب سورج نکلا تو انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج کا دن جو غروب ہوگا, سورج غروب ہوگا, تو یہ ملک یسوع مسیح کا عطیہ ہے اور اب عیسائیوں کا ہوگا. وہ فتح کے نشے میں چور میدان مناظرے میں بڑھ رہے ہیں, اور ہندوستان میں چپے چپے کے مسلمان آنسو بہا رہے ہیں, رو رہے ہیں. اہل دل رات کو نیند نہیں آتی, سجدے میں گرے ہوئے کہ یا اللہ کل کے دن کے بعد کیا ہم دوسرا دن دیکھ پائیں گے اسلام کی حالت میں, مسلمان ہونے کی صورت میں. ہندوستان مدبروں سے خالی نہیں تھا, پڑھے لکھے لوگوں سے خالی نہیں تھا, دانشوروں سے خالی نہیں تھا. وہ لوگ بھی تھے جو انگریزوں کے تلوے چاٹ چاٹ کے لندن, امریکہ میں اپنی جوتیاں گھسا کرتے تھے. وہ لوگ تھے جو قوم کو عزت, قوم کے عزت و وقار کو بیچ بیچ کر کے اپنے آبرو اور وقار میں تابناکیاں پیدا کیا کرتے تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو مسلمانوں میں گھس گھس کے غداری کے وہ پہلو دکھاتے تھے کہ انگریز اس کے صدقے اور طفیل میں انہیں سر کا بھی خطاب دیا کرتا تھا. سب لوگ تھے, اور ہندوستان میں سورج طلوع ہو رہا ہے, مسلمان آنسو بہا رہا ہے. اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس کے بعد یا تو عیسائی یا تو مسلمان دونوں ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا.
पूरा मुल्क ईसाई होगा। मेरे दोस्तों, जज्बाती लहजे में कहने की बहुत सारी बातें हैं। मुझे तो ये बताना है, उस वक्त में पूरी मिल्लत, पूरी उम्मत का सर बुलंद जिस किसी ने किया था वो ये कैराना की सरजमीन थी, और यही के पैदावार थे हजरत मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी अलैहि रहमा। उस वक्त हजरत मौलाना कासिम नानोतवी भी थे, याद रखिएगा। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की भी थे, याद रखिएगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोई भी थे, याद रखिएगा। हजरत थानवी भी थे, याद रखिएगा। और क्या क्या थे और क्या क्या नहीं थे, आप तारीख भरी पढ़िए, देख लीजिए, सब थे। लेकिन जिस किसी ने चप्पे चप्पे में मुसलमानों का सर बुलंद किया और मुसलमानों को मुसलमान रह के जीने का हक दिलाया, वो ये सरजमीन कैराना थी। और यहाँ का सपूत था जिनका नाम है मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी। जरा बताइएगा कैराना वाले कि उनके पास कितनी बड़ी फौज थी, कितना बड़ा लश्कर था, क्या तोपो तफंग रखते थे, वो कौन से तीरबाज थे, और वो कौन से लंदन और जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों की खाक छानी थी उन्होंने, क्या था उनके पास। ये गवाही तो आप देंगे ना। मुमकिन है बैरून मुल्क का कोई आए और कहे कि मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी के पास बड़ा फोर्स रहा होगा, बड़ी ताकत रही होगी। झूठा है वो, तारीख नहीं जानता। कैराने वालों से आके पूछे, मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी के पास चढ़ाई थी, कोई मुल्क नहीं था, कोई हुकूमत नहीं थी, वो अपने इस गांव के एक बाशिंदे थे। लेकिन जिस चीज के जरिए से उन्होंने पूरे कौम को जिंदगी दी और इनका सर बुलंद किया, मेरे दोस्तों, वो इल्म था। हमारा रिश्ता जिस नबी से है वो हुकूमत नहीं मांगते, पैसे नहीं मांगते, ओहदे नहीं मांगते। उस वक्त के रऊसाए कुरैश से, कुफार से अगर ये चाहते तो पूरे जमीन का चप्पा चप्पा खरीद लेते उन कैदियों के बदले। लेकिन उन्होंने उनसे कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मेरे जाहिलों को पढ़ा दो और तुम जाओ, तुम्हारा रास्ता खाली। इल्म मांगा उन्होंने, इल्म लिया, इल्म दिया अपने कौम को। और आखिर में भी हमने आपको सुना दिया। ये दरमियान का जो तारीखी वर्षा है, याद रखिए, हमारा भरा हुआ है इल्म और अहले इल्म से, तबके इल्म से। उस तारीख को मैं कहाँ तक सुनाऊं? मुझे तो अब आपसे सुनना है कि क्या वो कैराना जिसका माजी का रिश्ता इल्म से था, अहले इल्म से था, अब वो टूट के जहालत की गोद में आ पड़ेगा? अब आप बताइए, क्या मेरी आवाज कानों से गुजर के बाहर जा रही है? समझ रहे हैं? कुछ नहीं समझ बात आ रही तो 2.5 किलो का सर हिलाना जानते हैं, 2 ग्राम की जबान नहीं हिलाना जानते जी? अभी भी आवाज नहीं आ रही है? क्या ये कैराना अब जहालत की आगोश में जाएगा? नहीं जाएगा। ये उस वक्त तक नहीं जाएगा कि जब तक हम में ये दिलेर और ये शेर एक से एक यहाँ स्टेज पर जो बैठे हुए पैदा रहेंगे। तेरी मसलहत, तुझे मसलहत पसंदी, तेरी मसलहत मुबारक, मुझे काम हक सुनाना, मैं सुना के हक रहूंगा। मुसलमानों, अगर उलमा का दामन तुमने थामा हुआ है तो दुनिया की कोई कौम तुम्हें जलील नहीं कर सकती, और उलमा से अगर तुम्हारा रिश्ता छूट गया तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। क्यों? ये उलमा, ये सरापा इल्म का नाम है उलमा। ये कुर्ते पजामे का नाम उलमा नहीं है, ये टोपी पे नील चढ़ा लेने का नाम उलमा नहीं है, ये सफेद लिबास पहन लेने का नाम उलमा नहीं है। इल्म इनके घुट्टी में पिलाई हुई है। दुनिया का भी तुम्हें इल्म देंगे और दीन का भी तुम्हें इल्म देंगे। ईमान भी तुम्हारा बाकी रहेगा, दौलत भी तुम्हारे हाथ में रहेगी, सब कुछ रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा रब्त अहले इल्म और उलमा से रहे। लेकिन माफ कीजिएगा,
खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, थोड़ी सी शिकायत भी सुन लीजिए। अभी इसी साल की बात है और चंद महीना पहले मैंने कैराने में कई लोगों को फोन किया, अपने जो यूनिट के लोग हैं उसमें मैं अगर नाम लिए भी आप लोगों के समझ में आ जाएगी कि नसीम भाई होंगे। वो क्यों होंगे नसीम भाई? इसलिए कि ये भी एक दर्द रखते हैं, मुझे मालूम है इनका दर्द। मैंने फोन किया कि नसीम भाई अपने कौम का कोई बच्चा ऐसा ना रहे जिसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ना हो। अगर वो सीबीएसई बोर्ड की अहलियत नहीं रखता तो बहुत सारे सरकारी रास्ते हैं जिनके जरिए से हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिलाया जा सकता है इन बच्चों को। मैंने एक साहब को फोन किया कि आप लेके आइए, कहने लगे जी कितने बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा अगर एक ट्रक भर करके लेके आओगे उन सब का एडमिशन करा दूंगा और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पता चला हमारे बच्चे कहाँ हैं, वो बाग में अमरूद तोड़ रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ हैं कि वो ठेले पे केले बेच रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ हैं अजी वो कमाने में लगे हुए हैं। हमारे बच्चे कहाँ हैं वो मोबाइलों में लगे हुए हैं। हमारे बच्चे कहाँ हैं वो चूल चौराहे पे घूम रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ हैं वो नेतागिरी की फिक्र में लगे हुए हैं। हमें कैराने से कोई एक भी नहीं मिला, कैराने से कोई एक भी नहीं मिला। उस वक्त में एक बड़ा अधिकारी, एक बड़ा ऑफिसर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे हाथ में था, बैठा हुआ था। उसने कहा कि मामा जितनों की लिस्ट दे दोगे आप, मैं आपसे दोबारा फोन नहीं करने जाऊंगा, ये खबर दूंगा कि इन बच्चों का एडमिशन हो गया, ये खबर दूंगा, आप ले जाओ। लेकिन नहीं मिला। तो ये कैराना कहाँ जा रहा है? तारीख क्या बता रही है? हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दे करके हमारा सर बुलंद किया, ये पैगाम भी हमको इस जमीन से मिल रहा है और हमें अब जहालत की ये बू भी सूंघने को मिल रही है। मेरे पास वक्त नहीं था, ये तालीमी पीरियड है, इसमें कहीं जाना मुमकिन भी नहीं होता। लेकिन जब काजिम भाई ने, नसीम भाई ने कहा कि इस मकसद के लिए आना है तो मैंने कहा सब कुछ छोड़ दूंगा, 10 मिनट के लिए सही मैं कैराना वालों के सामने जरूर हाजिर होऊंगा। कल मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी भी होंगे मैदान क़यामत में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हजरत आदम तक सब होंगे मैदान क़यामत में। मुमकिन है मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी पूछ लें कि मेरे कौम में जिहादत की ये लहर दौड़ रही थी, तुमने क्या किया था? मैं इतना तो कह सकूंगा कि जनाब मुझसे कुछ नहीं हो सका तो स्टेज पर हाजिर होकर अपने गले फाड़े तो सुना दिया था पैगाम आपका। मेरे दोस्तों, इन्हीं मकासद की तकमील के लिए आपका ये अलहुदा इंटरनेशनल स्कूल कायम किया जा रहा है। आपको दीन चाहिए, ये दीन भी देंगे, दुनिया चाहिए, दुनिया भी देंगे, दौलत चाहिए, दौलत देंगे, इज्जत चाहिए, इज्जत देंगे, क्या चाहते हो तुम, सब कुछ देंगे। तुम एक काम कर लो, अपने बच्चों को तो दे दो इन्हें, तुम बच्चों को तो दे दो। अब ये बच्चे तुम्हारे लिहाज से तो उठा के नहीं लाएंगे यहाँ पढ़ाने के लिए, बच्चे देना तुम्हारी जिम्मेदारी और बकिया जिस चीज का मुतालबा करोगे वो सब कुछ देना इनकी जिम्मेदारी। ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा नहीं कि मेरी बात जज्बात में बह गई, बात समझ में आ रही है। कहने को यही बातें घंटों में कही जाती है जो मैंने मिनटों में कह दी है। मेरे दोस्तों, हमारी जो तारीख भरी पड़ी है, सहाबा ने उस जमाने में जब जुग्राफिया का जिम भी कोई नहीं जानता था तो जुग्राफिया का सबक पढ़ाते थे। बहरिया का बाप भी कोई नहीं जानता था, उसके उसूल और कवायद से इतने वाकिफ थे कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौज भेजा था हिंदुस्तान में। कौन सा कॉलेज था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन याद रखो जो हमारा इल्म और तरीक़े तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई कमी है। कमी है तो हमारे में बच्चों को दें तो हम पहले ही नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह ये सब कुछ हमें देंगे जो हमारी ख्वाहिश है। बस इसी पर अपनी गुजारिश